Welcome to brand new show Face to Face. This is an initiative of DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education, DME, which is a premier institute of Guru Gobind Singh Indraprastha University. DME has three schools which are included, DME Management School, DME Law School, and DME Media School. We offer four different programs which include BALLB, BALLB, BBA, and BJAMC, which is Bachelor of Journalism and Mass Communication. This is offered by DME Media School. And if I talk about DME is DME does believe in state-of-the-art technology, and we have been providing the best of the possible education to our students. And since March, since the time this COVID-19 struck, we have completely transformed. We have switched over to the latest technology, and we have been running our classes in the digital mode or on the online mode. And the new session also on 4th of August, we have started in this online mode. So let us have a look on the digital campus of DME. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures, and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. Welcome back to Face to Face. And as I told you, this is a completely new program which we have conceived, and from idea to execution, so many people have been involved into this. But before that, let me tell you something more about DME Media School. We not only run this whole program of BJMC purely on academic lines, but we go beyond that. We impart a lot of things outside the classroom, and we conduct a lot of co-curricular and extracurricular activities. We organize the international conference ICANN, and we have had 3 sessions of ICANN. ICANN 3 was organized only in the month of June, and it was completely on a digital live mode. And this was considered the first digital live conference of the world. Besides this, we also organized the International Film Festival. The first edition we organized in April 2019. Besides that, we organized the Media Fest, Vritika, and so many other activities. Now coming back to this program Face to Face, this is a chat show. This is an interactive program wherein the dean is interacting with the 3 students of BAJMC. So I am the dean of DME Media School. So I'm here in this program, and with me
there are 3 students, and we have chosen these 3 students from 3 different years. And there is one outgoing batch, the batch which is supposed to pass out in 2020, but because of the uncertainty over exams and all, they are still part of DME Media School. So we have taken 1 student from this outgoing batch, and then there is 1 student from the third year. Third year means the one who has the batch which has come to the 5th semester, and then the second year, the batch which has now come to 3rd semester, because these 2 batches have already been promoted. So in this show also, these 3 students are there, but let us have a look about the profile of these 3 students. So welcome again to this chat show face to face, and now everybody has seen who are there in today's edition. So we have with us Sakshi Tiwari, who belongs to the outgoing batch, and then we have Kritika Banerjee with us, who is from the 3rd year, and then we have Mayank Vash with us, who is from the 2nd year. So as usual, starting from the senior most person in the show. So firstly, to talk to Sakshi Tiwari. Sakshi, as everybody has seen in your AV, that you are interested in so many things, and you are in the lead in a number of activities. And we would like to know from you only what all are your passions, your inclinations, your interests. Can you tell us something about that? Yeah, so thank you so much, sir, for inviting me in this show. This was my childhood dream कि मेरा मैं ऐसे कहीं इंटरव्यू दे रही हूँ, चैट शो में बैठी हूँ, मुझसे कोई इंटरेक्ट कर रहा हूँ. मैं हमेशा मॉक इंटरव्यूज देती थी अपना अकेले में, बट ऐसा पहली बार हुआ है. तो अगर मैं बात करूँ अपने इंटरेस्ट की, तो मैं बचपन से इंटरेस्टेड थी रिपोर्टिंग में और एंकरिंग में. जब मैं केजी में थी तो मैं पेपर का रोल बना के पूरे घर में घूमती रहती थी कि आपको आज का आपका दिन कैसा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा करके. तो जो ऐसे करते करते जब मैं 8th में आई, तो मुझे पहली बार मौका मिला कि मैं कॉलेज में एंकरिंग कर सकूं, स्कूल में एंकरिंग कर सकूं. देन वहां से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ. फिर उसके बाद रेडियो शोज किए मैंने स्कूल में ही, एंड फिर स्कूल में कमांड देने का मौका मिला, एंकरिंग करने का मौका मिला. तो वो चीज जो थी वो पूरा वैसे ही चलती रही. एंड इन कॉलेज ऑल्सो आई पार्टिसिपेटेड इन ICAN 1, ICAN 2, सभी जो भी होता था उसमें मैं एंकरिंग करती थी, होस्ट करती थी. तो यही मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट था और इसी के लिए मैं हमेशा से पैशनेट थी. Okay, so your main passion is anchoring. Yeah, somehow. Yeah, Yes. And then you are also interested in reporting. But then, besides this, if I talk about your hobbies, your creative instinct and all, if you can tell us something about that. मेरा ऐसा बेसिकली ऐसा नहीं कि इसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है और उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ. मुझे जो पसंद आता है मैं वो करती हूँ. अगर मुझे सिंगिंग पसंद है मैं सिंगिंग करती हूँ, डांसिंग पसंद है डांसिंग करती हूँ. मतलब जो मन करता है मैं वो उसको कर लेती हूँ अपना. नहीं तो तुम्हें सिंगिंग, डांसिंग, इन सारी चीजों में क्या पसंद है? What exactly you do? मतलब तुमने कहा ना मन करता है, तो क्या मन करता क्या है? क्या मन करता है? मन करता है तो मैं सिंगिंग कर लेती हूँ. ठीक है, मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा मन करे मैं सिंगिंग कर रही हूँ. यहाँ पे मैं डांसिंग तो बहुत कम ही करती हूँ, बट सिंगिंग यूजुअली मैं थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ. तो चलो तो ठीक है, तो हम सुन लेते हैं क्या सिंगिंग करती हूँ. ठीक है, मैं थोड़ा सा गा लेती हूँ. डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स.
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जन्मदाता है जो नाम जिसने दिया, थाम कर उंगलियां है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। थैंक यू। Good. So it was really impressive. So moving on to Kritika. Kritika, we have seen your AV, I mean, rather everybody has seen about your interest and your passion and hobby. And since as teacher, I also know the other teachers also know as to what are your interests and what all activities you are always involved in. Like we have seen in CP, then you are involved in digital, rather in the social media marketing, you are handling that all. And besides that, as we have seen, you are interested in singing and other things, but then we would like to listen from you only what are your passions. Yes, sir. Yes. Thank you so much. First of all, सर ये था कि बचपन से हर क्लास के साथ साथ इंटरेस्ट ग्रो करता गया। भतेरी म्यूजिक कंपटीशन करे है, भतेरी बार एंकरिंग करी है, डिबेट्स बहुत करे है मैंने स्कूल टाइम पे, पोएट्री बहुत बोली है। आई वाज द हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल। तो मतलब मुझे ये था कि मुझे को करिकुलर बहुत पसंद था। ठीक है, डांसिंग कभी नहीं करी, टच भी नहीं किया, डांसिंग बहुत बुरी हूँ मैं डांसिंग में, पर बाकी सब कुछ जो मैं कर सकती हूँ मुझे था, तो वो मैंने सारी चीजें ट्राई करी है। फिर कॉलेज में आके और ज्यादा प्लेटफॉर्म मिला, तो इन सब के बीचों बीच कहीं ना कहीं 9th-10th में जब मैं थी तब मैं लिखने लगी। तो पोएट्री से स्टार्ट हुआ, फिर आर्टिकल्स में गई, ऐसे करके। तो मुझे ये पता था कि ये सारी चीजें मैं नहीं छोड़ने वाली जो साइड बाय साइड करती हूँ, बट साथ में जो ये राइटिंग है ये मेरे को अपना कोर पैशन रखना है। तो साथ में सब कुछ, अभी कॉलेज में आई हूँ तो ये सब करती हूँ, एंकरिंग वगैरह सब चलता रहता है, बट जो राइटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग का जो साइड है मेरा, वो मैंने नहीं छोड़ा, वो अभी भी कंटिन्यू और आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा। तो राइटिंग में क्या करती हो, मतलब किस तरह की राइटिंग तुम्हें पसंद है, या व्हाट इज योर कोर एरिया ऑन विच यू राइट? सर पोएट्री कर लेती हूँ, और लाइफस्टाइल आर्टिकल्स, मेरा ब्लॉग है उसमें मैं लाइफस्टाइल आर्टिकल्स लिखती हूँ, रिव्यू लिखती हूँ, मेंटल हेल्थ के बारे में लिखती हूँ। तो ये सब, और बाकी मैंने ऑफिशियली एज अ इंटर्न काम किया है, तो अब मेरे को राइटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में, ऐसा पहले लगता था कि सिर्फ कंटेंट राइटिंग ही होती है डिजिटल मार्केटिंग में, बट अब जब एक्सप्लोर करने को मिलता है, अभी ऋत्विक सर के साथ भी हमने करा था एक डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप, उसमें जब एक्सप्लोर करने को मिला तो बहुत सारी चीजें मिली, राइटर उसके साथ साथ, और ये सारी चीजें भी साथ साथ इंटरेस्ट में साइड बाय साइड करती रहा। तो तुमने, तुम्हारे, मैंने एवी में देखा कि तुम्हें सिंगिंग का भी शौक है, तो किस तरह के गाने गाती हो? सर गाने ऐसे, मतलब आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, सीखा है 3 साल म्यूजिक सीखा है, बट क्या सीखा म्यूजिक में, क्या सीखा तुमने? हिंदुस्तानी घराना ही सीखा है, थोड़ा बहुत सीखा था, सब्जेक्ट था स्कूल में साइड में, तो इतना कभी ध्यान नहीं दिया, बट थोड़ा बहुत कर लेती थी। तो रविंद्र संगीत नहीं सीखा? कॉम्पिटिशन में बहुत रविंद्र संगीत नहीं सीखा? हाँ, रविंद्र संगीत सुनती हूँ, मुझे पसंद भी है। गाती नहीं हो रविंद्र संगीत? थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। हाँ, तो थोड़ा बहुत सुनाओ। ठीक है। आमारो परानो जाचा, Kritika, I mean, are you connected now? Can you say? Yes, sir. Yes, sir. Keep your this camera horizontal. Yeah. Yes. Yeah. You have to. But then you have to start again.
আমারও পরানো যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো আমারও পরানো যাহা চায় তোমা ছাড়া রে জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো আমারও পরানো যাহা চায় बस गुड तुमने तो आई मीन ये थैंक यू सर ग्लैमर क्वेश्चन जोड़ दिया प्रोग्राम में आई मीन रवींद्र संगीत तो वैसे ही इतना सूदिंग है एंड यू sang वेरी वेल सो थैंक यू सर सो मूविंग ऑन टू मयंक मयंक तुम्हें अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा So, Mayank, you are the junior most among the three. You have now entered in the third semester, but then you have been there in the college for the last 1 year. And after entering the college, before entering the college, I mean, when you were in the school, you might be pursuing certain interests, certain inclinations. So we want to know about your passions first. So first of all, thank you so much, sir, for having this opportunity and keeping me in this show. And really, thank you so much, sir. And coming to my passion, it's like कि मैं हर चीज देखना चाहता हूँ, सुनता हूँ, मैं हर चीज सुनता हूँ, सुनना भी चाहता हूँ और सब कुछ को जानना परखना चाहता हूँ। मेरे को घूमना बहुत पसंद है, एक्सप्लोर करना चीजें। और सर जैसे कि मैं पहले से ही मतलब कि मैं 12th में आई वाज हेड बॉय इन स्कूल and always been to a leadership panel in school and their DME and their like volunteer and Vartika and Anugunj always be there for taking responsibilities and always be there. बट देन हमने तुम्हारे एवी में देखा कि तुम परफेक्शनिस्ट हो और बहुत आगे लाइफ में जाना चाहते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो. सो व्हाट डू यू मीन ऑफ बिकमिंग एन परफेक्शनिस्ट? Meaning of perfectionist is like I don't want to be a multi-millionaire and like मैं बहुत rich होना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. पर सर एक perfectionist ये है कि सर always be to be satisfied. Need a satisfied lifestyle. नहीं सर कुछ नहीं तो कुछ होने की कोई ऐसे निराशा हो और नहीं कुछ पाने कोई जल्दी हो. सर ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए मेरे को. मैं पैसा ऐसा कुछ नहीं है पर हाँ पर एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहता हूँ. But then when it comes to like anybody who joins the journalism and mass communication course has some kind of inclination, like as other guests, other students in this show, they have already said, either you are interested in reading or in writing or singing or dancing or anchoring, I mean, any such thing. So what is your interest area among these all? मेरा इंटरेस्ट एरिया जो है वो है मेरी मैनेजमेंट में. चीज को मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटी जो ऐसी आती है मेरे पास, मैं हमेशा आगे रहता हूँ. तो इवेंट मैनेजमेंट एक्चुअली सर मेरे स्कूल टाइम में मेरे 11th और 12th में मेरे मीडिया सब्जेक्ट थे CBSE. तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ लाइक आई शुड परस्यू BJMC एंड गो देयर एंड एक्सप्लोर द थिंग्स, एक्सप्लोर द ऑल पर्सपेक्टिव्स ऑफ मीडिया. दैट्स ऑल सर. Okay, so moving on again to Sakshi. Sakshi, now we would like to know, since you have been there for 3 years and very shortly you will move out in the public life, in the professional life, but then during these 3 years you would have made a lot of friends, you would have passed through different phases in life, and then obviously in every semester there are different teachers who are teaching you. So you would have entered into some bonds with this teacher or that teacher, and then obviously you would have enjoyed the campus life also, I believe. So can you tell us something about that? Yeah. So DME college was like my second family. मैं सबसे पहले होती थी जो कॉलेज में आती थी, वे बिफोर टाइम 10:30 का टाइम होता था, 9:30 आती थी एंड देन आई यूज टू वर्क. तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली. यहाँ पे रैगिंग क्या होती है, टीजिंग क्या होती है, दैट इज फार अवे. Then Bala ma'am is very supportive. She is like mother. उनके पास आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओ, she is ready with the answers, she is ready with the solutions. फ्रेंड्स की बात करो तो आई मेड वेरी गुड फ्रेंड्स डे 1 से. प्रिया, हरीश,
ये सब मेरे फ्रेंड्स रहे, आदर्श, साकेत, गजेंद्र, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। व्हेन आई टॉक अबाउट आदर्श, साकेत एंड गजेंद्र, तो ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, इनके पास इतना टैलेंट है कि उन्हें खुद नहीं पता होगा कि ये भी एक्सप्लोर करने की चीज बची है अभी हम में। तो इनके पास अगर 5 मिनट बैठ जाओ तो दे आर लाइक, उन बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो ऐसा ग्रुप होना जो आपको हमेशा दे परसुएट कि यार ये करो वो करो, and then they all are very good. If I talk about teachers, so Sumantra sir, Yashasvika ma'am, Dr. Atul Arora, Mohit sir, they all are very talented. इनके पास आप जाओ, बहुत knowledge है, and they always support students कि आप ये करो, and they are very good. तो यहाँ का जो एटमोसफेयर था, यहाँ पे जितना सीखने को मिला, इट्स वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। तो तुम कॉलेज में 3 साल तक केवल पढ़ाई करती रही या कुछ नए नए आइडियाज पे काम करती रही है? मतलब देयर वाज नो फन पार्ट इनटू दैट? नहीं, पढ़ाई भी करी, इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया, बाकी जो बाहर के चीजें जो होती थी जैसे फोटो बॉक्स होते थे या कुछ भी होता था, इट्स लाइक कि मिक्सचर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जो इस चीज से मिला, ये नहीं कि मैं सिर्फ मस्ती कर रही हूँ या फिर मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने सारा कुछ मतलब 3 साल में एक्सप्लोर किया, सब कुछ जाना समझा, एंड आई रियली एंजॉयड ईच एंड एवरी पार्ट। So thank you, Sakshi. Now moving on to Kritika, you have also passed 2 years in DME Media School, and then obviously you would have made a lot of friends not only in your class but in other sections or in juniors and seniors, and then obviously you would have come close to many teachers who would have contributed towards your growth and all, and then whatever activities you have been participating. So we would like to know all about your friends and teachers. Yes sir. Yeah. सर फ्रेंड सर्कल की बात करें तो बचपन में ऐसा था कि जहाँ जाती थी घर वालों को प्रॉब्लम होती थी कि ये जहाँ जाती है एक दोस्त बना के आती है, पर कॉलेज में आके बहुत छोटा सर्कल रहा है। बात सबसे होती है, सबके साथ अच्छे रिलेशन है, पर फ्रेंड्स में मेरे 2 सबसे अच्छे फ्रेंड है। एक सिमरन है, सिमरन आयुषी बोस, और सिमरन यास्मीन, देख रहे होंगे दोनों अभी, बड़े खुश हो रहे होंगे। तो सिमरन तो 5th क्लास से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और कॉन्सिडेंटली हम सेम कॉलेज में भी हो गए। नहीं, दोनों को अलग। Yes, continue. ग्रेफिटी का टाइम आया, सीढ़ी के साइड वाला। कृतिका, तुम्हारे सिग्नल की काफी प्रॉब्लम हो रही है। So we'll continue Sir, talking. am I audible? Yeah. Sir, am I audible? Yeah. Speak. Yeah, go ahead. Okay, by the time your signal get corrected, let me talk to Mayank. Mayank, can you tell me something about your friends and your experience with teachers and all? Okay, sir, in DME, I've made many friends in my class. We have a group of 8, and we are all like lucky for having each other. And sir, दोस्तों की बात तो ऐसे है कि सर काफी अच्छे रहे मेरे, तो मेरा सर्कल काफी अच्छा रहा है। सभी सर अच्छी जगह पे हैं, आज मैं भी सही जगह पे हूँ, और आशा करता हूँ वो भी सही जगह रहें। और सर डीएमई तो मेरे लिए सर ऐसा है कि मेरा हमेशा था कि अगर जैसे मैंने 12th में काफी मेरा एक्सेल्ड इन 12th एंड थॉट कि आई वुड गो टू डीयू, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं डीयू में नहीं जा पाया। तो फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ आईपी में DME, और one of my seniors there, Preet Varmanik, he suggested me. Then मुझे लगा कि DME जाना चाहिए, और फिर जब मैं आया यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे तब पता चला कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर है, काफ़ी चीज़ें हैं, और कॉलेज काफ़ी अच्छा है। फिर जब टीचर्स, माय फर्स्ट सेमेस्टर वाज लाइक वेरी गुड, एंड टीचर्स पूरी बहुत सपोर्टिंग है, अच्छा सपोर्टिंग है, और वो हमेशा ही मतलब कि आपके साथ हमेशा रहेंगे। और भी जैसे अभी सेमेस्टर 2 में जैसे अभी ये कोरोना टाइम था, और मैम हमेशा कृतिका मैम ऑलवेज कि कोई बात हो, मैम कोई ऐसी कोई चीज़ हो, हमेशा कोई बात में तैयार रहता था और हर कोई चीज़ में सपोर्ट करता था।
Kritika, now you are back, so we could not listen to you completely. Now you can complete your expression, whatever you were telling us. अब आ रही है आवाज सर? हाँ, अब आ रही है। हाँ, सो हाँ, जैसे सिमरन का बताया, वो बचपन से शी इज लाइक अ फैमिली, उसकी फैमिली मेरी फैमिली दोनों सेम ही है। फिर आपको याद होगा, हम पूरा ग्रुप सीढ़ियों के पास ग्राफिटी बना रहे थे एक टाइम पे, पिछले साल की बात है। तब आई मेट देवजानी, तब आई मेट सुमित, तो उनसे मिली। उसके बाद आयुषी से मिली। तो आयुषी हैज बीन अ पर्सन इन माय लाइफ जिसने कॉलेज में आके ऐसा हुआ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि स्कूल में तो तुम इतना कर रहे हो और कॉलेज में देखते हो कि अरे तुमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आयुषी ने वो रोल प्ले किया कि उसने हमेशा ये करते हैं कृतिका, वो करते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और उसी की वजह से फिर और ज्यादा मैं पार्टिसिपेट करने लग गई इन सब चीजों में। बाकी टीचर्स की बात करें तो कामिल सर है, संचिता मैम है और ऋत्विक सर है, इन सब ने, और भी बाकी सारे टीचर्स ने हेल्प करी है। किसी का भी अगर मतलब नाम ना ले तो वो नहीं होगा, पर ये कुछ टीचर्स है जिन्होंने बिल्कुल ही अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया है। बाला मैम है, अभी कुछ दिन पहले ऋत्विक सर को मैंने कुछ काम से फोन करा, तो ही टू व्हाट्सएप। तो ऐसे जैसे कामिल सर है, कामिल सर को एक दिन मैंने किसी काम, बहुत अर्जेंट काम था, एंड आई वाज लाइक ओ सर फोन नहीं उठा रहे। सर ने फोन करके लिटरली मेरे को बोला कि सॉरी कृतिका, तुम्हारा फोन था, बताओ क्या काम है। तो होती है जो है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत फ्रेंडली है, तो अच्छा रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस। So thank you, Kritika. Now moving on again to Sakshi. Sakshi, you have been there for 3 years. So, but then college is important. I ask questions about college, but then family is equally important. And in every person's life, the contribution of parents is very, very significant. So if I ask you about your parents, your family, and your siblings, what would you like to tell us? तो मेरे फैमिली में मेरे फादर है, मदर है, ब्रदर है। तो स्टार्टिंग में व्हेन आई टोल्ड देम कि मुझे बीजेएमसी में जाना है, मुझे जर्नलिज्म का कोर्स करना है, दे वाज लाइक कि नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। बट देन आई सेड कि नहीं मुझे करना है, यही करना है। देन उसके बाद माय फादर वाज द वन जो 2 घंटे बाहर खड़े थे जस्ट कि मैं अपना एग्जाम दे के आऊँ, और फिर वो मुझे घर लेकर आए। तो देन दे आर वेरी सपोर्टिव। मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं करती हूँ। अभी मैंने उनसे बोला कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, देन दे सेड कि अब तो इसी लाइन में करना पड़ेगा ना तुम्हें। मैंने कहा हाँ। तो दे आर लाइक वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी फ्रेंडली, मतलब बहुत अच्छे हैं मेरे पेरेंट्स। मेरे भाई भी ठीक है, वो भी करते रहता है कुछ। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम अगर बहुत देर तक बाहर रहती हो घर से या बहुत देर तक पढ़ाई करती हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम है? पेरेंट्स हैं, उन्हें चिंता तो रहती है। वो तो मैं किसी भी लाइन में रहती तो उन्हें चिंता तो रहती, मैं काम करूं ज्यादा देर तक। वो कहते हैं बेटा सो जा, सुबह उठ के कर लियो। अगर बहुत ज्यादा लेट हो जाती है तो मेरे लिए ये था कि मेरे फादर का ऑफिस 63 में, अब मैं 62 में थी, तो लेट होता था तो वो बाहर खड़े रहते थे कि चलो बेटा अब घर चले। तो हमेशा ऐसे ही रहता था, तो इसलिए कभी उनको ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कभी कभी हो जाता था तो मम्मी कहती थी कि क्या कोर्स चूज कर लिया। बट देन अगर वो मुझे ग्रो करते हुए देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि चलो कुछ अच्छा कर रही है। लेकिन कोई तुम्हें रेस्ट्रिक्टिव नहीं लगता था कि तुम्हारे फादर फ्री हुए ऑफिस से आ गए और तुम्हें बिल्कुल फ्रीडम ही नहीं दी? मुझे बहुत खुशी होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं अपने फादर को बाहर देखती थी मुझे दिल से इतनी खुशी होती थी कि मतलब मैं तो उछल पड़ती थी कि अरे अब जिस दिन वो नहीं आते थे मुझे इतना बुरा लगता था कि अरे आज पापा नहीं आएंगे, वरना फिर मेट्रो से ट्रेवल करो, ये करो, तो अच्छा लगता था मुझे। मतलब अपने फादर के साथ बात करो, वो जो टाइम होता था कि 1 घंटे हम ट्रैवल के टाइम जो बाप बेटी की बातें चलती थी वो तो सबसे ज्यादा बेस्ट होती थी। तो मुझे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। Look, this is really, I mean, this is definitely a different approach because most of the youngsters try to find time for themselves and away from their parents. So if you are so close to your parents and particularly your father, as you said, so it's really a welcome thing. Now, moving on to Kritika. Kritika, we would like to know about your parents, your family, and your siblings. Yes, sir. Sir, I come from a very humble family, and मम्मी बहुत बचपन में चली गई थी मेरे। पापा है, दीदी है,
तो हम तीनों का ऐसा चलता है कि मम्मी का जो रोल है वो तीनों में स्विच होता रहता है। कभी मैं उनकी मम्मी बन जाती हूँ, कभी दीदी हमारी मम्मी बन जाती है, कभी पापा हमारी मम्मी बन जाते हैं। तो तीनों का ही ऐसा है कि हर चीज का दोनों ने मेरे को फ्रीडम दी है, और अगर जहाँ जहाँ रोकना टोकना होता है वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी दिखा देते हैं कि नहीं ये तू नहीं करेगी तो तू नहीं करेगी। पर वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि एक जन की दीदी की साइड से ऐसा आता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है तू और ये है वो है, बट पापा उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। कई बार पापा की तरफ से, तो ऐसे ही तीनों का चलता है। बाकी बीजेएमसी जब लेना था तब भी कुछ नहीं बोला। दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन एवरी डिसीजन कि तुझे जो करना है कर, वी आर सपोर्टिंग यू, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माय एकेडमिक्स और करियर, तो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। दे आर ऑलवेज लाइक कि जस्ट मेक द राइट डिसीजन एंड वी विल सपोर्ट यू। तो इट्स अ वेरी हम्बल फैमिली। तो दीदी तुम्हारी काफी बड़ी होंगी तुमसे? 3 साल बड़ी है। Okay, so now moving on to Mayank. Mayank, we would also like to know from you as well about your family and parents. Actually, sir, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरे पापा में आई एम बीइंग थ्रू न्यूक्लियर फैमिली, एंड इट्स माइटली मेरे पापा मेरे में काफ़ी सपोर्टिंग है हर चीज़ में। जैसे कि मैं ना मतलब कि बचपन से मेरा ऐसा था कि मैं बहुत पढ़ने में सर, एक तो था बिलो एवरेज, मैं बिलो एवरेज से भी काफ़ी नीचे था। तो सर तो एक्चुअली फिर 10th स्टैंडर्ड आई तो फिर सर एक्चुअली फेल्ड 10th स्टैंडर्ड एंड रिपीटेड 10th, एंड देन आफ्टर आई लाइक मेरे को पता था कि हमारे स्कूल में मीडिया सब्जेक्ट्स हैं वोकेशनल में 11th एंड 12th में। तो एक सेशन हुआ सर मेरे स्कूल में कि जिनको मतलब कि ह्यूमैनिटीज लेनी है तो फिर सेशन हो रहा है तो आप एक बार एक ओवरव्यू ले सकते हो। तो मैं गया उसमें, तो फिर देयर इज कॉल्ड निशा मैम देयर हु टॉट मीडिया सब्जेक्ट्स, and there's 2 media subject: understanding the evolution of mass media and the creative and commercial process in mass media. And she gives an overview about those 2 subjects, and I really interested in those, and like मुझे लगा कि यार अब पढ़ना है, अब हो गया, अब जो होना था वो हो चुका है, अब तेरे को पढ़ना है, अब तेरे को बनना है, कोई सब कुछ करके दिखाना है, तो अब तेरे को अब तू करेगा। तो फिर सर वही यहीं से सर बस पता चल गया कि मीडिया क्या है। तो मेरे वो मास मीडिया जब से वो मेरा सेशन था ना, तो वो वहीं से मतलब कि लाइक I am disconnected from a delusion and connected to realism, and like I am there for always from mass media। and जब मैं पढ़ा वहाँ पर तो पता चला कि क्या क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या करियर है वहाँ पर, तो एक बहुत अच्छा लगा। तो अपने स्कूल से ही मैं काफी अपने स्कूल पे बहुत थैंक्स हूँ। और फिर कॉलेज है, कॉलेज लाइफ काफी अच्छी है। अभी 1 साल भी पूरा ही नहीं बता पाया मैं तो अभी कोरोना के टाइम पे। तो सर जितना भी बताया वो बहुत अच्छा था, लेकिन मतलब कि नया परसेप्शन मिलता है सर मीडिया से। जैसे मैम ने पढ़ाया, डिजाइनिंग हो गया, प्रिंट के बारे में जितना एवोल्यूशन उन्होंने पढ़ा, वो सब फिर नया पर्सपेक्टिव देता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने ऐसे चूज करी थी अपने सब्जेक्ट, तो नया परसेप्शन बना सर। और मैं लगता है कि मेरे आगे और 2 सालों में सर बहुत कुछ और पता चलेगा, नया परसेप्शन बिल्ड होगा। एक करियर मैं चूज करूंगा सर, उसको और करूंगा। So, Sakshi, we would like to know now about your career. I mean, your planning about the career, though you have already told us that you will be taking up further studies at the postgraduate level. But then, I mean, what are your plans? What kind of studies you will be taking up? And what kind of career you will choose finally? तो मोस्टली जो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी विथ लाइक मोर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म और न्यू मीडिया या फिर टेलीविजन की तरफ ज्यादा रहेगा मेरा। तो मैं इसी के रिगार्डिंग करूंगी। जैसे मैंने बोला एंकरिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि आगे चल के मैं उसमें कोई करियर कर रही हूँ, या फिर डिजिटल जर्नलिज्म और समथिंग लाइक दैट। तो अभी तो हम लोगों ने तुम्हारे बैच के 4 लोगों को न्यूज नेशन चैनल में भेजा काम करने के लिए। Then why didn't you come up that time? नहीं, न्यूज नेशन अभी से स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ जॉब या फिर इंटर्नशिप सारी चीजें। तो अभी आई एम प्लानिंग फॉर इट। देन जब मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम, देन आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी। So you have applied in some institutions for PG level? Yeah, I'm trying and I'm applying in some institution. अगर हो जाता है होपफुली तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही है, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ मैं। So moving on to Kritika. Kritika, though there's 1 year to go, but still you would have thought something about your career after you finish your BA JMC. So what all you have thought about your career and future? सर अभी तो
फिलहाल बहुत कुछ सीखना है, बहुत बार माइंड चेंज हुआ है कि रेडियो अच्छा है, कभी ये अच्छा है, पर दिन वो घुमा फिरा के राइटिंग में ही आ गया है। तो आगे हो सकता है मार्केटिंग मास्टर्स करूं डिजिटल इसमें, डिजिटल न्यूज़पेपर के उसमें, और आगे जाके एक बार कॉर्पोरेट लाइफ भी एंजॉय करना चाहती हूँ, बिकॉज ऐसा होता है कि सब बोलते हैं कि नहीं वही 9 to 5 जॉब ये वो, बट आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा वो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो डेस्कटॉप के ऊपर जो डिजिटल चीजों को लेके काम करना और उस पे घुसे रहना। आई एम वेरी मच इनटू दैट। सो आगे graduation के बाद you would like to take up a job straight or you will study further? सर आई हैव येट टू डिसाइड दैट, अभी अच्छे से डिसाइड नहीं करा है इस बारे में, थोड़ी डाइसी भी हूँ, कभी लगता है नहीं पढ़ाई भी करूंगी और फिर लगता है जॉब भी करूंगी, बट आई हैव एन ईयर टू डिसाइड दैट, तो अभी करूंगी डिसाइड। हाँ, उतना टाइम तो अभी तुम्हारे पास है। सो मयंक, तुम्हारे पास तो अभी काफी टाइम है सोचने के लिए, बट फिर भी अगर आज मैं तुमसे पूछूं तो तुमने क्या सोचा है अपने करियर को लेके? तो मेनली मैं एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में जाना चाहता हूँ साथ साथ। और सर जो मेनली सर पब्लिक रिलेशन जो मतलब एक जो ब्रांड के साथ जो एक वो क्लाइंटेज जुड़ती है, उसमें जो मार्केटिंग और जो एडवर्टाइजिंग उसमें चीजें आती हैं सर, उनमें काफी इंटरेस्टेड हूँ मैं मार्केटिंग बिल्डिंग में। और जो सर जो टारगेट ऑडियंस को टारगेट करती हैं जो प्रोडक्ट, वो सब सर मेरे को काफी पसंद है। मैंने पहले ही पढ़ा, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूँ डीपली, तो उसके लिए मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। और आगे सर इतना तो अभी फोकस नहीं हूँ कि मैं इसी में जाना चाहता हूँ, और सर और जो आगे वाले सर 2 साल हैं वो और बताएंगे, तो सब परसेप्शन चेंज हो जाए सर, यहाँ पर ये बात है। So moving on, Sakshi, now, I mean, whatever I wanted to ask, I have practically asked everything, so there's no point in further lingering the program, but definitely I would like to know, before finishing with this show, as to anything that you wanted to tell, you could not because I did not ask, or I mean, any kind of thing that you wanted to say, you are free to say that. आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज को कवर कर दिया है और सम अप कर ही दिया है बताते बताते, तो उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा रह गया है जो बताना, बट आई थिंक कि हो गया सब कुछ कवर। चलो अच्छा है, भाई तुम थोड़ा ऑस्टेरिटी में, मितव्ययिता में बिलीव करती हो कि थोड़े में ही पूरी बात कहते। हाँ। तो कृतिका, any last word, any final thing that you would like to add here? सर ऐसा जो उन्होंने बोला, साक्षी दीदी ने बोला, सब कुछ ही हम लोगों ने बात कर लिया, पर ये है कि अभी 1 साल और एक्सपीरियंस करूंगी और आगे जाके ये सभी मतलब वो करूंगी, चेरिश करूंगी कि हाँ ये भी सीखा वो भी सीखा। सो इट इज अ गुड एक्सपीरियंस सो फार एंड इट विल बी गुड। Mayank, what would you say finally? सर मेरा मानना तो ये कि सर कीप ऑन लर्निंग, गिव अ ट्राई टू एवरीथिंग। एंड सर मैंने भी हमेशा ही सर, पर मेरा तो हमेशा था कि मैं बिल्कुल मेरी एजुकेशन लेके इतना वो बहुत लाइटली था, मेरे को तब कुछ है नहीं। तो सर फिर पता चला कि यार ये एजुकेशन ही है जो तुम्हें आगे बनाएगी, बड़ा बनाएगी। तो सर उस चीज से काफी मैं मोटिवेट हुआ अपनी, जब वो मतलब कि मेरा एक फेज था कि मेरे को 10th स्टैंडर्ड जब रिपीट करनी पड़ी, तो फाइनल की मेरे को 10th स्टैंडर्ड रिपीट करनी है, तो मेरा वो फेज जैसे निकला है, वहां पर जो मैंने चीजें सीखी हैं, जो एक पूरा चेंज आया, माइंडसेट जो मेरा चेंज हुआ है, तो परसेप्शन एक बिल्ड हुई है, तो सर वो मेरे लिए बहुत बड़ा फेज था। और उसकी वजह शायद सर मैं आपके सामने हुआ जहाँ पर इस शो में हूँ, और तो सर यही है। So this is nice that all three, Sakshi, Kritika and Mayank, they are very positive, they are very optimistic, and I also believe that these are the best traits, best characteristics of a person, because if you are good in all these things and you think positive and you are forward looking, then definitely you will go a long way, you will do good in your career and in your life. So with this note, we end today's edition. Thank you all. Thank you so much, sir. थैंक यू सर।